हेलो, मैं हूँ परिधि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अंजना सुखानी का। जैसे कि हम जानते हैं आपकी मूवी आ रही है कॉफ़ी विद डी। सबसे पहले तो आप इस मूवी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। Hi Paridhi, thank you for having me on your Cine Speaks. Coffee with D एक हिलेरियस क्वर्की कॉमेडी फिल्म है और जैसा आप लोगों ने प्रोमोज में देखा है कि इट्स काइंड ऑफ अ टेक ऑन अर्नब एंड हाउ ही गोज टू इंटरव्यू द मोस्ट वांटेड मैन इन द country, which is Dawood Ibrahim, of course. And the whole situation around it, to make it really comic and funny, is what honestly Coffee with D is all about. And I play a character called Parul. She herself is an ex-crime reporter, and she's on maternity leave. So even though she's at home, she is still very upbeat about knowing what's happening in the criminal world. And because, of course, her husband, which is played by Sunil, is a reporter himself, and his job is at stake. So she kinds of plants the germ in his head that, listen, how cool it would be to interview, the man himself, the Dawood Ibrahim. And that kind of triggers the thought and how he decides that this is what he wants to do, and then the story goes so on so forth. सो कुछ कंट्रोवर्शियल आपने फेस किया क्योंकि अर्नब इज़ अ बिग नेम, दाऊद ऑफ कोर्स इज़ अ बिग नेम, सो इन दोनों पे मूवी बनाना, कॉफ़ी विद डी रखना, कुछ कंट्रोवर्शियल आपने एनीथिंग लाइक? See, as of now, honestly, we haven't really quoted any controversy as of now. I think probably when the film releases, we might. I don't know. I hope not so, because I really hope that people take it in a gist and take it more sportingly, because it's fun. We are not trying to poke any mockery or make a fun out of people's lives or characters, but it's just that some people are so interesting and their personalities are so amazing that you want to kind of pick up some traits and use them. That's what we actors do, that we observe people and we realize, oh my god, look at the way she walks, and look at the way this one's dancing, and look at the way this one's talking. And that's how we really get inspired, by adapting those kind of qualities in the characters as and when are required. So I really hope that no controversy is kind of stirred unnecessarily, and that people really enjoy the film and see it as it is. So how did you feel sitting on that side of the seat, because you are playing a journalist? Yeah, so how did you feel? Did you look out for journalists, for any journalist? Did you do your No, preparations? honestly, I honestly didn't need much of preparation, because, like I said, she's on maternity leave. She's pregnant in the film. And second, she's a crime reporter. She's not your typical Bollywood journalist. So all she need to know was what is happening in the crime world. But when you see her at home, she's reading books on babies, because like she's expecting. So even though she is on that leave, but she still wants to know what's happening in the criminal world. So she keeps watching TV all the time, all those crime patrol shows, and she knows what is happening and who's doing what and stuff like that. So there was not really too much prep required, because I have not been shown being on field. I've been shown more at home. So yes. Completely get it. How was your experience working with Sunil? क्योंकि वो pranks के लिए जाने जाते हैं, कुछ उन्होंने set पे कुछ ऐसे interesting सा prank जो आप share करना चाहें? I don't know. He's not a prankster as such. I think he's just such a poker straight comedian that you'll never see him crack a joke and laugh himself. So you'll always see him that he'll crack a joke with such a straight face that it will crack you up, basically. So that's how Sunil is even in real life. And no, he's not a prankster at all, but he's fun to be around, because at the end of the day, because he plays so much of Mashhoor Gulati and has played Guthi for so long, that he has those traits in him, and they sometimes come forth and suddenly he'll start talking like them. So it's fun that way. Yeah, interesting guy to work with. Yeah. इस मूवी से हमें क्या कुछ मैसेज मिल रहा है या जस्ट एंटरटेनमेंट बेस्ड है? No, I don't think so. Every film is here to preach something. I think some films are just here to kind of go and have a good laugh and come. And then I would just say Coffee with D is one such film where you can go and have a good laugh, and at the same time probably, yes, feel a little more patriotic. Yes. न्यू ईयर्स के क्या प्लान है आपके? I'm gonna be sticking at home this year, so yeah, pretty much no plans of going out as of now. हाय, मैं हूँ परिधि त्रिपाठी और इस वक्त मेरे साथ हैं द इंडिया के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। वेलकम सुनील। वेलकम परिधि। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे प्रमोशंस करके अपनी मूवी के लिए? हाउ डू यू फील?
मेरे को एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो शो करते हैं हम लोग, तो कपिल शर्मा शो, उसके अंदर लोग आते हैं अपनी मूवी की प्रमोशन करते हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, सो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। मैं मोस्टली आपकी जगह खड़ा होता हूँ जहाँ आप खड़ी हुई हैं, लेकिन इतना सुंदर बन के नहीं, गंदा सा बन के। तो आज कुछ अजीब अजीब लग रहा है, मुझे लगता है जल्दी से मैं इधर आ जाऊँ, आप इधर आ जाएँ। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ। अब मैं उधर आ सकती हूँ, आप माइक मुझे दीजिए। अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताइए। अभी काश मैं बता पाती। अच्छा, तो कहीं उसका नाम एस से तो नहीं शुरू होता? उसका बिल्कुल नाम ऐसे शुरू होता है। अच्छा, कहीं उसके सरनेम के एंड में आर तो नहीं आता? बिल्कुल आर आता है सरनेम। What are we doing here? Let's go from here, no? ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि Question है, आपका हाउ डिड यू फील टू बी उस सीट के उस तरफ आने के लिए, क्योंकि आप मूवी में एक जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे हैं, तो कैसा लगा आपको? मतलब आपने कुछ प्रेपरेशंस करी या? प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम किया हुआ था, और जो डायरेक्टर हैं विशाल मिश्रा, वो भी काफ़ी क्लियर थे कि उनको क्या बनाना है। मैं उनको उनके दर्शन भी कराना चाहूँगा। इस वक्त वो यहीं खड़े हुए हैं, ये हैं फिल्म के निर्देशक, और ये विशाल सर, और इन्होंने बड़ा मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट पे काम किया हुआ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अच्छा, तो कुछ प्रेपरेशंस कुछ किया ही नहीं आपने? कोई प्रिपरेशन नहीं की सुनील ने। He just came on the set, shot the film, went back. He was too busy shooting अपने shows। सर मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया था कि आप ये कहो कि सुनील ने बड़ी मेहनत करी, ये तो उल्टा। सर ये तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैंने गलती कर दी आपको बुला के। आपको चाहिए था कि नहीं, पूरा तो सुन ले यार, अभी नीचे का हाथ कहाँ लगाया हेरा फेरी वाला। उसमें ऐसा है कि बहुत एफर्टलेस एक्टर है, कभी आज तक इसने कोई एफर्ट नहीं पुट किया, और दिखता है कि एफर्ट लगाता ही नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है। बस आया, बस आया, शूट किया, चला गया। जाने की जल्दी रहती है, चाहे इंटरव्यूज़ के दिन हो चाहे शूट के दिन हो, बट उसके बाद भी जो रिजल्ट आपको दिखेगा फिल्म में भी, जो प्रोमो देखा है वो 10% भी नहीं है, वो बहुत मज़ा आएगी देख के। और सुनील के टैलेंट का एडवर्टीजमेंट बनाया है हमने, क्योंकि इज़ द ओनली वन हु इज़ देयर इन द कंप्लीट फिल्म इन एवरी फ्रेम। आपको हर शॉट में सुनील ग्रोवर दिखेगा, और इसके अलावा उसमें कोई नहीं दिखेगा, ना डायरेक्टर ना सपोर्टिंग एक्टर्स। डायरेक्टर तो दिख ही नहीं सकते, और नॉट इवन डी, नहीं डायरेक्शन स्किल भी नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ अर्नब सुनील की अर्नब स्किल्स दिखेंगी। थैंक यू, बाय। आप बहुत खुश हैं उनकी तारीफों से? उन्होंने आप अंडरलाइन अगर आपने देखा हो तो उन्होंने बड़ा सार्केस्टिक इंसान है। उन्होंने कहा कि एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाते। तो सार्केज़म से भरी हुई लाइनें जो मैं कहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल थैंकफुल नहीं हूँ हमारे फिल्म के डायरेक्टर का। यस। कपिल को कॉमेडी का किंग कहा जाता है और आपको उसका क्राउन कहा जाता है। क्या आप मुझे कहेंगी मुझे क्वीन कहा जाता है? नहीं, वैसे बोल सकते हैं, द वे यू प्ले गुत्थी, आपको क्वीन बोल सकते हैं, बट स्टिल आपको क्राउन कहा जाता है। कुछ आप पे प्रेशर रहता है या कुछ एनीथिंग? द बेस्ट पार्ट इज़ हम लोग काफ़ी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, और एक कंफर्ट लेवल है टीम में, तो मुझे अभी हम लोगों को मज़ा आने लगा है एक दूसरे के साथ। तो कभी हम स्क्रिप्ट वीक होती है किसी भी एक्टर की, किसी भी चंक में, तो हम सब लोग बैठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो मेरी भी सब लोग हेल्प करते हैं। तो अब वो चीज़ें हैं कि मुश्किल वाली बात नहीं है, अब ये है कि इसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं इस इतने स्पैन में, इस समय में। कई बार आपके पास बहुत समय होता है तो आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन ये टेलीविज़न है, जैसे वीकेंड पे आएगा, आपको पता नहीं होता कि लास्ट मोमेंट में चेंजेस होते हैं, कि कौन इंटरव्यू, आपको तो पता ही है कि लास्ट मोमेंट में किसका इंटरव्यू करना है। तो प्रेपरेशन की कई बार टाइम होता है, क्योंकि फ़नी बनाना उसको थोड़ा सा कठिन होता है दूसरे नॉर्मल इंटरव्यू से, तो हम लोग बनाते हैं फिर फनी उसको, कठिन काम करते हैं। कितना मुश्किल होता है लड़की से लड़का में चेंज होने के लिए, टू स्विच द रोल्स, बिकॉज यू प्ले गुत्थी व्हिच इज अ वेरी फेमस फॉर कैरेक्टर? मी फिजिकल चेंज यस, बट मेंटली इट्स नॉट अ गर्ल और बॉय फॉर मी, और मैन फॉर मी, इट्स अ कैरेक्टर विच आई प्ले, सो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। नाउ दिस वन इज अ लिटिल आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन। Yes. जब आप लड़की बनते हैं और आपको वॉशरूम यूज़ करना होता है, आप क्या करते हैं? तो मैं प्रेफरेबली जेंट्स वॉशरूम में जाता हूँ, पर एक बार मैं आपको बताऊँ क्या हुआ था। मैं कुछ शो में था और बैक स्टेज पे एक बाथरूम बना हुआ था, वहाँ पे मैंने लड़की के कपड़े पहने हुए थे, और वो लेडीज़ बाथरूम था और जेंट्स में, जेंट्स बाथरूम में गया तो एस्कॉर्ट जो मुझे बंदा कर रहा था वो मुझे लेडीज़ बाथरूम की तरफ धकेल रहा था। मैंने उसको ऐसे करके कोनी मारी और वह जेंट्स वॉशरूम में गया, और जब जेंट्स वॉशरूम में गया तो वहाँ पे एक आदमी जो साथ में खड़ा हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा, कहता सॉरी सॉरी, उसको लगा कि वो गलत बाथरूम में आ गया। तो मैं कहा नहीं नहीं, मैंने थोड़ी और आवाज़ भारी करके बोला कि उसको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।